السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج ملک کے اندر وہی جو ہلچل مچی ہوئی ہے. مختلف سیاسی جماعتیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں احتجاج کروں گا, کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کا احتجاج فضول ہے, اور اگر آپ نے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا تو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. غالباً گورنر راج اور دیگر معاملات کی طرف اشارے ہیں, اور اس وقت شہری جو ہیں وہ مختلف مقامات پر مختلف وجوہات کی وجہ سے پریشان بھی نظر آتے ہیں. چاہے وہ سندھ کی بات کریں تو جو انفراسٹرکچر ہے اس حوالے سے شہری چاہتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے کام میں مزید بہتری آئے. لیکن آج ایک ایسی چیز ہوئی جس نے پاکستانی قوم کے موڈ کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے, اور یہی ساری جو پریشانی اور الجھنیں تھیں کم از کم کچھ دیر کے لیے دور ہو گئی ہیں. اور وہ خوشخبری جو تھی, پاکستان سیمی فائنل میں جیتنے کے بعد فائنل میں پہنچا ہے, اور اس خوشی نے پاکستانیوں کے چہروں کو کھلکھلا کے رکھ دیا ہے. اور اسی کھلکھلاہٹ کے ساتھ پاکستانی خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب چلیں کوئی ایک خوشی کی خبر تو ہمارے پاس آئی ہے, اور یہ خوشی کی خبر ایسی ہے کہ جس کے بعد ہم اپنے ان معاملات جس میں الجھے ہوئے تھے وہ کم از کم کچھ دیر کے لیے بھلانے میں کامیاب تو ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر پاکستانی قوم نے آ کر متفقہ طور پر خوشی کا اظہار کیا ہے. اور یہ خوشی جو ہے کتنی بڑی خوشی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ بابر اعظم بھی کہیں کہ جناب میں بھی مستقبل میں اگر میں ورلڈ کپ جیت جاتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ سیاست میں آؤں گا اور وزیر اعظم بنوں گا. کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا. لیکن بہرحال اگر جو سیمی فائنل انڈیا کا ہونے والا ہے, بہت سارے پاکستانی اس وقت یہ دعا کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ سیمی فائنل سے فائنل میں پہنچے, اور جو فائنل ہے پاکستان اور انڈیا کا ہو جس میں پاکستان فتح یاب ہو اور آگے کی سمت میں بڑھے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پاکستان کی جانب سے کچھ جو شہری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوں, دلوں کی دھڑکنیں مزید تیز ہو جائیں گی یقیناً اگر یہ معاملہ ہوتا ہے. اور یہ آج ہم اپنے جو موضوعات ہیں اس کو تو لے کر چلیں گے, لیکن پاکستانی ٹیم کی جو یہ بڑی خبر ہے اور خوشی کی بات ہے اس پر ہم اپنے مہمانوں سے بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید روشن علی وارثی صاحب, تجزیہ کار ہیں. جناب روشن صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. جناب مسرت صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائی ہیں. وارثی صاحب ایک بڑی خوشخبری ہے, پاکستان جیتا ہے اور فتح یاب ہونے کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں ان کی امنگیں مزید آگے کی طرف چلی گئی ہیں. سر کیا کہیں گے پاکستانی قوم کی جیت پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. دیکھیں آج بہت بڑا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے سب کو خوشیاں دیتا رہے. اللہ تعالیٰ خوشیاں دینا چاہتا ہے مگر ہم اپنی خوشیوں کو خود ہی خراب کرتے ہیں. اللہ نے کہ ہمیں اتنا اچھا پیغام دیا, آج پورا ملک جو ہے نا ایک جگہ متحد ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں سیاسی لوگ بھی ایک جگہ متحد ہو جائیں, اور مجھے لگتا ہے کہ سیاسی لوگ متحد ہیں, مگر کیونکہ ظاہر ہے جب الیکشن کا دور ہوتا ہے تو الیکشن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, مگر اس کو نیگیٹو نہ لیا جائے. عوام کو چاہیے کہ کسی کی طرف سے دل نہ برا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے محبت سے رہیں, اور وہ اس کو بالکل بھی ان کو پوری دنیا میں یہ میسج ہماری طرف سے نہیں جانا چاہیے کہ ہم لوگ آپس میں کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہیں یا لڑائی کرتے ہیں یا ہم لوگ دشمن ہیں. بالکل نہیں سوچنا چاہیے. یہ ایک پروسیس ہے, یہ بھی ایک خوبصورتی ہے ہمارے بھی جو جمہوریت کی. تو جمہوریت کی خوبصورتی کو خوبصورتی تک رکھیں, انتقام کی طرف مت لے کے جائیں. اور میرا خیال میں کوئی انتقام چاہتا نہیں ہے, مگر یہ بیرونی سازشیں جو ہیں نا وہ شاید اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں. الحمدللہ ہمارا ملک متحد ہے, متحد تھا, متحد رہے گا. اور انشاءاللہ اب یہ پاکستان کی جو جیت کی بات کی ہے, یہ اللہ نے ہمیں اتنی اچھی خوشخبری دی ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ آج عوام بہت خوش ہے, ہم سب بہت خوش ہیں. آج سب ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور ناممکن کو اللہ نے ممکن بنا دیا. یہ اللہ کی شان ہے. تو اب آپ سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے, ہمارا بلیو ہے, تو کیا اب آگے ہمارے ملک کی حالات صحیح نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہوں گے. یہ ان لوگوں کو دھول چاٹنی پڑے گی جو لوگ اس کے لیے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں یا غلط خبریں سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا ملک خراب ہو جائے گا. نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ ہماری اپنی ہیں, یہ ہم سب کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب مل جل کے اسی طریقے سے محبت سے, جیسے کرکٹ کی ٹیم ایک جگہ پہ ہو گئی, اسی طرح سے ہماری سیاسی جماعتیں سب ایک جگہ ہو جائیں, ہمارا ملک بالکل ترقی کی طرف جائے گا. بالکل. اب تو لگتا بھی ایسے ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کو مل کر ہی چلنا پڑے گا, ورنہ کچھ منظرنامہ ایسے ہی لگ رہا ہے. دیکھیں ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کسی بھی جگہ. دیکھیں جب اگر کوئی کمپٹیشن اسکول کے اندر جو کمپٹیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کے آگے ترقی کی طرف جائیں. تو ایک پروسیس ہے, پروسیس کو نیگیٹو نہ لیا جائے, اس کو پازیٹیو لیا جائے. یہ ملک کی بہتری کے لیے جتنی سیاسی جماعتیں سب ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں, اور ادارے بھی ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو
इंशाल्लाह। और एक चीज़ और बड़ी आज अच्छी खुशाइन बात हो गई, वो ये हो गई कि वो इसहाक डार साहब जो हमारे वज़ीर ख़जाना है, माशाल्लाह वो उन्होंने एक कदम इस तरफ बढ़ाया है, क्योंकि देखें मैंने कहा ना, ये पाकिस्तान की जितनी जमातें हैं ये मुल्क की तरक्की का सोचती हैं, बेहतरी का सोचती हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग नेगेटिव बात करते हैं, किसी सियासी वाबस्तगी होती है वो उनकी बात करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो आगे की समझ में बढ़े, बिल्कुल यही दुआ हमारी भी है। और मुसरत साहिबा से जान लेते हैं। मुसरत साहिबा, यकीनन आपके नाम का ही एक लाज रखी है, लोग काफ़ी मुसरत में हमें नज़र आए, खुश नज़र आए कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचा है। क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात दरअसल ये है कि बहुत खुशाइन बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम को बड़े टाइम बाद एक अच्छी खबर मिली है क्रिकेट की तरफ से, लेकिन खुदा ना करे कि उसको 92 से हम कंपैरिजन करें कि अब जो है ना ये हमारा जो एक पहले निकम्मा कप्तान आया, वो समझ रहा था कि मैं सियासत का जो है ना किंग हो जाऊंगा, अनाड़ी था, अनाड़ी है और अनाड़ी रहेगा। और क्रिकेटर का मतलब ये नहीं, देखिए हर शख्स की अपनी एक फील्ड है। अब मैं वकार भाई आपकी सीट पर आकर एंकर नहीं हो सकती हूँ, ठीक है, और जो काम मेरा है, जो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा ही प्रोफेशन हो सकता है, उसको मैं बेहतर तरीके से ले सकती हूँ। एक खिलाड़ी है, अल्लाह ने एक अगर हमारे पास बाबर आजम खेल रहे हैं, एज अ कैप्टन है, उसको अल्लाह पाक जितवाए, और हमारी सबकी ख्वाहिश है, हमारे मुल्क की ख्वाहिश है कि जीते। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो कहे कि जी मैं बहुत बड़ा हीरो बन गया हूँ और अब मैं अपनी क्रिकेट को छोड़ के, अपने प्रोफेशन को छोड़ के मैं उस पुराने अनाड़ी की तरह जो है ना आके सोचूं कि वज़ीर आज़म बन जाऊँ। हर एक का हक है, हर एक का हक है, लेकिन हम मेरी दुआएं जो है ना अपनी टीम के साथ। ये पाकिस्तानी मेरी अपनी ज़ाती विश है, मैं बहुत क्रिकेट शौक से देखती हूँ। मेरी अपनी ज़ाती विश है कि हमारा फाइनल इंडिया से हो और हम इंडिया को धूल चटाएं और उसको बताएं कि पाकिस्तानी कौम और के साथ, पाकिस्तानी टीम के साथ दुआएं भी हैं, और अल्लाह पाक का जो आसरा है हमारे पास। जब हम दुआएं लेकर बैठते हैं ना, तो आप कि हमारे सामने कुछ नहीं चलने वाली। और इंशाअल्लाह ये मेरे बच्चे, ये मेरे पाकिस्तानी कौम के बच्चे जो है ना बहुत अच्छा खेलते हैं। और स्पेशली हम जब इंडिया के सामने होते हैं तो हर एक प्लेयर की कोशिश होती है कि मेरी जो ना कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो एफर्ट्स अपनी ज़ात के लिए नहीं करते हैं वकार भाई, वो चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ। अभी वो कोई भी क्रिकेटर कहेगा कि यार मैं अच्छा खेल लूँ तो मेरा नाम होगा, लेकिन वो उस वक्त कहते हैं कि मेरे मुल्क का नाम हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ लेकर, बहुत अच्छे जज्बे के साथ मेरी टीम इंशाल्लाह उतरेगी और पाकिस्तानी टीम इंडिया को, अगर इंडिया से मुकाबला होगा तब इंडिया हो या जो भी नहीं जो भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया से हो और हम इंडिया से जीते और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। उस वक्त मुकाबला भी बड़ा तगड़ा हो जाता है, मज़ा आता है उस मुकाबले में मज़ा होगा। चले। अच्छा वारसी साहब, अभी आप इस खुशखबरी के साथ ही आप एक और खुशखबरी का भी जिक्र कर रहे थे। आप कह रहे थे कि और भी खुशखबरियाँ जो हैं पाकिस्तान को मिली हैं। सर क्या कह रहे थे आप? सूद के हवाले से भी जिक्र कर रहे थे आप। देखें, खुशखबरी ये है कि हमारा मुल्क जो है ना एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से वजूद में आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सियासी जमातें जितनी भी हैं वो बड़ी अरसे तक कोशिश कर रही थी कि ये सूदी निज़ाम से जान छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इसहाक डार साहब जो है ना वो टीवी पे आके ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की कि भाई हम पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से सूदी निज़ाम ख़त्म हो, और उसमें जो उनकी तरीक़ाकार है उसको ज़ाहिर है वो करेंगे। तो वो उस तरफ एक पेशकदमी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक दिन है हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए, कि अगर हमारी कोई मजबूरियाँ थी शायद वो ख़त्म हो गई हैं। अब हमारी सियासी जमातें जो हैं वो इस तरफ सोच रही हैं, सूदी निज़ाम को ख़त्म करने की बातें कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ पर एक खुशखबरी हमको अल्लाह ताला ने अगर से कि ये देखें, ये हमारी जो बहन है इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और मैं समझता हूँ कि इनके भी दिलों में कोई नफ़रतें नहीं है। ये जो पीपल्स पार्टी है या कोई PDM की जमातें, ये नफ़रत वाली जमातें नहीं है। PTI की जमात नफ़रत वाली जमात नहीं है। ये हमारी सोच है, हमारी सोच में नफ़रतें हैं। हमको अपनी सोच बदलनी होगी। क्यों मेरी बहन? ऐसा ही है ना, हमें बिल्कुल अपनी सोचों को चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को बहन भाई नहीं समझेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकते। देखिए, सियासत को जो ना वो नफ़रत में नहीं भरना चाहिए। सियासत को ये समझें कि ये एक इबादत है।
सियासत को इबादत समझें। देखें, एक इसहाक डार साहब किसके लिए कर रहे हैं? हम पूरे 22 करोड़ आवाम के लिए कर रहे हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी अगर कोई अच्छा काम करती है, जैसे बसें चला रही है और भी काम है, बल्कि ये तो सबकी मर्जी शामिल है ये जो सूद का निज़ाम ख़त्म करने में, तो हम तो इसको वेलकम करते हैं। तो मैं तो इन सबको सलूट करना चाहता हूँ कि देखें, ये हमारे 22 करोड़ आवाम का इन्होंने सोचा। और एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो जमातें सोच रही हैं सूद का निज़ाम ख़त्म करने के लिए, उसकी वजह ये है कि ये सब अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। देखें, बाहर की ताकतें, बैरूनी ताकतें हमको ग़ुलाम बनाना चाहती हैं, मगर हमारी ताकतें उन ग़ुलामी से जान छुड़ाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को खुश करें। अल्लाह को खुश करने का तरीका ये है कि आप सूद से जान छुड़ाएं, जो कि अब इन्होंने सोच लिया। देखिएगा अब ये करेंगे ये लोग। ठीक है, नहीं अच्छी खबर है, बल्कि बड़ी खबर है कि सूदी निज़ाम जो है वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये खुदा से जंग कहलाते हैं और खुदा से जंग कोई भी ना कर सका है और ना कर सकेगा। मुसर्रत साहिबा, इस वक्त जो शहर कराची है, सुबह से नए उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात कर रहे हैं, शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिस प्लानिंग भी हमें नज़र आ रही है। बसेस भी इस वक्त लेकर आ रहे हैं, क्या आप इस बारे में क्या कहेंगी? इस वक्त जो बसेस आ रही हैं, चाहे वो ऑरेंज बस की बात कर रहे हैं आप, रेड बसेस, बिल्कुल सही, अच्छी चीज़ है, अब इलेक्ट्रिक बसेस आप लेकर आए, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो या मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो बसेस जो हैं वो शहर कराची के रूट्स के हवाले से नहीं लग रही हैं, क्योंकि बड़ी बसेस हैं, रूट और उसका जो मामला है उसको किस तरह से बेहतर करेंगे आप लोग? देखिए वकार भाई, मेन चीज़ है अभी ट्रायल के लिए चलाई गई हैं, और मैं समझती हूँ कि जब कोई ऊँट रखता है तो दरवाजे भी उसके ऊंचे ही रखता है। तो जब देखें जब देखें नहीं, मैं मेरी बात कंप्लीट होने, जब देखिए वकार भाई, जब ऊँट गवर्नमेंट लाई है ना तो दरवाजे भी ऊंचे करेगी यकीनन। जब अगर इस किस्म की इलेक्ट्रिक बसेस लाई हैं तो यकीनी बात है कि वो सिस्टम भी, चाहे रोड्स का हो या दूसरे मतलब मराहिल हों, उस पर भी अमल होगा। तो यकीनी बात है अब फ़ायदा मैं और आप उठा रहे होंगे, हमारी औलादें उठा रही होंगी। बिल्कुल ठीक है। वारसी साहब, मुसर्रत साहिबा तो कह रही हैं कि हम बेहतरी की तरफ मुख्तलिफ इक़दामात जारी रखेंगे, लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि शहर कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस काबिल है कि मज़ीद मामला जो है उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे क्या? मैं अगर इसकी बात को थोड़ा उससे पहले से शुरू करूं तो शायद मुनासिब होगा। ये मेरी बहन बैठी हैं वो, तो मैं इनसे बताता हूँ कि देखें, हमें 2-3 सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि हमें सेवरेज सिस्टम जो हमारे पाकिस्तान का, हमारे कराची का स्पेशली, उसको सही करने की ज़रूरत है। हमारा सेवरेज सिस्टम सही होगा, रोड उसके बाद सही होंगे। आप समझते हैं कि रोड अगर बज़ाहिर आपको चौड़े और सही नज़र आएंगे, नहीं होंगे। जैसे ही बारिश होगी सेवरेज सिस्टम फेल हो जाएगा, उसके बाद फिर आपकी ये सब चीज़ें दोबारा नाकारा हो जाएंगी। बुनियादी चीज़ ये है कि आपको सेवरेज सिस्टम कराची का सही करना पड़ेगा, ड्रेन सिस्टम सही करना पड़ेगा। उसके बाद आपके रोड में जैसे पानी आएगा बह जाएगा, आपके रोड ख़राब नहीं होंगे। एक तो ये बुनियादी चीज़ है। इसका दूसरा फ़ायदा मैं और बताऊं, क्योंकि देखें मेरा ताल्लुक जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। अब जो कराची में जो जगहें जो ना ख़त्म हो गई है, अब हमको ज़रूरत है वर्टिकल एक्सपेंशन की। अब वर्टिकल एक्सपेंशन पे जाने के लिए आपको फिर ड्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें जब ड्रेन की ज़रूरत, उसमें चाहे वो पानी के मामला तो, चाहे पानी आना हो या निकासी। जी देखें आने वाली बात तो बात की बात है। मैं बात कर रहा हूँ निकासी की। आपको पता है ये डिफेंस जो है वहाँ पर कितने ऐसी जगहें हैं जहाँ पर के पानी आ गया था, वहाँ पे चीज़ों का बहुत नुकसान हुआ लोगों का। तो अब वो भी DHA भी एक बहुत बड़ा अच्छा इदारा है, जहाँ जो उनकी कमियाँ थी वो अब दूर कर रहे हैं ना। इसी तरीके से जो हमारी पीपल्स पार्टी यहाँ पर है, माशाल्लाह, मैं चाहता हूँ कि इनको, मैं सिर्फ तवज्जो इनके तौर से दिलाना चाहता हूँ कि आप कराची में सेवरेज सिस्टम सही करें, फिर उसके बाद जो हाउसिंग स्कीम जो है उसके ऊपर तवज्जो दें। ठीक है जनाब, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहीं से कंटिन्यू भी करते हैं और बिल्कुल आते हैं वारसी साहब, यहीं से कंटिन्यू भी करेंगे और एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। और इस वक्त जो बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो इस वक्त शहर कराची के लिए बेहतरीन किस्म से काम कर रही है और उसके जितने भी काम हैं उससे शहरी मुतमईन है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतमईन है? और अगर मुतमईन है तो किस हद तक है? शाहिद साहब से ही बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शाहिद भाई, क्या मुतमईन नज़र आ रहे हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामों से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए वकार साहब, पीपल पार्टी सही बोल रही है जी, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 साल में 2209 अरब रुपए जो आवाम का हड़प किया ना, और इनके जेबों में चले गए ना, तो ये सही कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेंगे, लेकिन वो जब पैसे आते हैं ना
वो करप्शन की नजर और इनके जेबों के नजर हो जाते हैं और आवाम का काम नहीं होता। ये मैं सुनता आ रहा हूँ, जब रोटी और कपड़ा मकान का नारा लगाते थे पहले, और न आज तक किसी सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध में, न कराची में किसी को न रोटी मिली, न मकान मिला और न कपड़ा मिला। सब हालात आपके सामने हैं, अंदरूनी सिंध के भी और कराची के भी, टूटी फूटी सड़कें। ये तो अल्लाह भला करे इमरान खान साहब का, जो कि उसने यहाँ पे ग्रीन बस भी चला के दिखाया, सरकरल रेलवे भी चला के दिखाया, और कराची के अंदर गली कूचे जो RMNS को पैसे भी दिए, वो भी जो इनका काम था वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में कराची का हुआ। अदरवाइज वही जो पहले आज से 12 साल पहले या 15 साल पहले जो नेमतुल्लाह खान के टाइम पे हुआ था, अब जो तहरीक इंसाफ का टाइम है वो उसमें भी हुआ। अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रहती तो आप देख लेते कि कराची का नक्शा कैसे चेंज होता है ये 3 साल के अंदर। ये लोग तो 12 साल से मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं ना, उस वक्त क्यों इन्होंने कराची का नक्शा क्यों चेंज नहीं किया? ये सब जो है ना लॉलीपॉप है, ये अवाम के पैसों का ज़या है। जिस तरह शहबाज शरीफ ने पंजाब के अंदर 200 अरब रुपए का मेट्रो चला के आप पूरे मुल्क को मकरूज बनाया, इस तरीके से ये देखिए आवाम को क्या चाहिए? आवाम को देखो तालीम दो, सेहत दो, जिस तरह इमरान खान ने दी है सेहत कार्ड 10 लाख रुपए तक गरीब आदमी उस पर इलाज कर सकता है। उनको तालीम दो, यूनिवर्सिटियां बनाओ, ना कि करप्शन की जो चीजें सारी उनकी नजर हो जाती है और ये हमारा मुल्क पीछे की तरफ जाता है। ये हमारे साथ यही तो हो रहा है 70 साल। अच्छा, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन कर रही है? तो ये जवाब ले लेते हैं मुसर्रत साहिबा से। मुसर्रत साहिबा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काम कर रही है, करप्शन कर रही है, या काम के दौरान करप्शन कर रही है? क्या कहेंगी? देखें, शाहिद साहब जो कह रहे हैं वो बेशक उनकी नज़र में ठीक होगा। अगर इतनी ही करप्शन इन्हें नज़र आ रही थी तो 3.5-4 साल इनकी गवर्नमेंट थी, वो उस करप्शन का क्या कर सके? मेरी तमाम लीडरशिप जो है ना, हर पेशी में, चाहे मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने कॉल किया हो या उस वक्त जो इनका अपना गठजोड़ था नैब के साथ, उस वक्त नैब के पास पेशियाँ हुई हों, तमाम जगहों पे थे। तो क्या साबित कर सके ये लोग? ठीक है, एक चीज़। दूसरी ये कि बजाय कि आप किसी चीज़ को एडमिट करें कि सिंध गवर्नमेंट ने अच्छी बसेस लाएं, मतलब ट्रांसपोर्ट बेहतर प्रोवाइड कर रही है, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची देखिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची अगर वो बेहतर काम कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को एडमिट करो। आप एडमिट करो या ना करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को डिलीवर करना, हम पाकिस्तानी आवाम की खिदमत करना, हम अपने सूबे की आवाम की खिदमत करना। बात दरअसल ये है कि ये कह रहे हैं कि जी खान साहब ने गलियां टूटी छूटी बनाई। अरे मेरे भाई, खुदा को माना करें, झूठ बोलते हैं इन लोगों को शर्म नहीं आती? मुझे ये समझ में नहीं आता कि देखें, झूठ बोलने के लिए कुछ तो बंदे को होना चाहिए। गली मोहल्लों में कह रहे हैं कि इनके MNAs ने जहां खुदाइयाँ की वहाँ पानी, जो साफ पानी था, उनकी पाइपलाइन तोड़ दी। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि कराची के हम हालात बदल देते। आते साथ तो खान साहब कराची में आते नहीं थे, आते भी थे तो बिजनेसमैन से मिलकर कलेक्शन की और चल भाई। और फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो खान साहब ने किया है कराची के लिए बहुत बेहतर हो सकता था। वो मेरे भाई, कराची के लिए 162 अरब खान साहब कह के तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंग गायब होते हैं। दूसरी बात, 1 मिनट प्लीज, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। बात दरअसल ये कि ये फरमा रहे हैं कि कराची के अंदर हमने बहुत बेहतर कर देना था, हमने हेल्थ कार्ड दिया। यही खान साहब का कहना था कि हेल्थ कार्ड हम सिंध में इसलिए नहीं दे रहे कि सिंध हमारा नहीं है। ये अल्फाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी लीडर, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने नहीं कहा। देखें, मकसद ये कि आपने यहां पे क्यों नहीं स्टार्ट किया? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था तो उन्होंने अपने MNAs को और अपने MPs को नहीं दिया था। तमाम, अगर अपोजिशन के लोग भी थे, तमाम के तमाम लोगों को दिया था ताकि वो अपने हलकों में जाके दे सके। ये चीज़ नहीं थी। वारसी साहब, आप ही मसला हल कराएं। दोनों जानिब जो है हम देख रहे हैं कि बहुत ही पारा हाई है, कुछ थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत महसूस हो रही है।
دیکھیں میں بتاؤں، یہ ان کو جو غصہ ہے نا یہ صرف دوستی کا ہے، یہ لوگ سب دوستی کرنا چاہتے ہیں. یہ جو دیکھیں خان صاحب ہوں، نہیں میں سر میں معذرت کے ساتھ سر میں کیونکہ میں صلح کرانے والوں میں سے ہوں، میں اتنی صلح کی بات کر رہا ہوں. یہ جو بہن کو غصہ ہے نا شاید ان کی ناراضگی یہ دوسری پارٹیوں سے، تو یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ اختلاف صرف سیاسی جماعتوں کا صرف الیکشن تک ہے. جب جیت جائیں گے یہ مصنوعی ہے، کیونکہ جس وقت جیت جائیں گے تو یہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. جیسے آج پاکستان جیتا ہے تو سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ ایک پروسیس ہے، کمپلیٹ ہوگا. جو جیتے گا یہ سب ان کو ہار پہنائیں گے. لہذا اب میں اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اب میں اپنی بات کر لوں. میری بات یہ کہ سر میں ایک تاجر ہوں، میرا اپنا کنسٹرکشن انڈسٹری سے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے تعلق ہے. ہماری ایک ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن ہے جس کے جو پریسیڈنٹ ہیں جناب زبیر صاحب ہیں، زبیر بیگ صاحب، اور حنان مغل صاحب جو ہیں اس کے چیئرمین ہیں. ہماری 4 گروپس ہیں، ماشاءاللہ چاروں میں اختلافات ہوتے ہیں مگر جب جیت جاتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو ہار پہناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی جماعتیں بھی اسی طریقے سے ہار پہنائیں گے. تو وہ میری جو ڈیفینس اینڈ کلفٹن ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن جو ہے اس نے مجھے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا، اس کے ذریعے میں نے اپنی آواز اٹھائی. اس میں بہت سی جگہوں پہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا، میں نہیں کامیاب ہوا، اللہ نے مجھے کامیاب کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ جو بھی حکومت آئے وہ کم از کم ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر ایک پروسیس کمپلیٹ کرے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے نا کوئی ایسے ہی نہیں کہ کوئی دکان خریدے اور جا کے بیٹھ جائے. اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ یہ دے کہ بھئی ایک ریرا کا کورس کروائیں، ایک سرٹیفکیٹ کروائیں کہ جو ریرا کا کورس پاس کرے گا، ظاہر ہے وہ پڑھا لکھا ہوگا، کم از کم گریجویٹ ہوگا تو وہ ریرا کا کورس پاس کرے گا. جب وہ پاس کر آئے تو اس کے بعد وہ یہ کام کر سکتا ہے جس سے ہماری انڈسٹری کو مزید فروغ ملے گا، ہماری انڈسٹری ترقی کرے گی. ہماری انڈسٹری سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا اس سے ہماری بہن پیپلز پارٹی کی جماعت کو فائدہ ہوگا، پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو فائدہ ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. اچھا شاہد صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کافی اس وقت ناراض نظر آ رہے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اگر احتجاج کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، آپ نے اپنا احتجاج ختم نہیں کیا تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، اور دیگر جو انہوں نے اندیا دیا ہے وہ یقیناً پی ٹی آئی کے لیے تو پریشان کن ہوگا. بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے تو 2-4 ہزار لوگ تھے، تو کیوں اتنے گھبرا رہے ہیں؟ مجھے تو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے گھبراہٹ کا شکار ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ جب 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں آئیں گے تو ان سے کیسے سنبھالیں گے. دیکھیے کسی بھی ملک میں احتجاج اسی ملک کے عوام کا جمہوری حق ہوتا ہے، اور اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، انہوں نے عوام پہ ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں، انہوں نے جو ملک کے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، اسی سے تنگ آ کر عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کے پیچھے لگا کے وہ روٹی کپڑا چھین کے عوام تنگ آ چکی ہے. اس لیے روڈوں پہ انہوں نے مجبوراً نکلنا ہے. ان کی جو غلط پالیسیوں کی وجہ سے پہلے ایک امپورٹڈ ان کا وزیر خزانہ آئے تھے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر لیا. اب دوسرا امپورٹڈ وزیر خزانہ آیا ہے، ان کو کچھ پیسے نہیں دیتے. دنیا کو پتا ہے کہ یہ خود چور ہے اور ان کو جو ہے نا ملک پہنچانا ہے، اس لیے عوام روڈوں پہ نکل رہی ہے. عوام اپنے بچے کے مستقبل کے لیے روڈوں پہ نکل رہی ہے، تو عوام اگر روڈوں پہ نکل رہی ہے تو ان کا جمہوری حق ہے. شاہد صاحب، خان صاحب کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں نکل رہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں، اور مطلوبہ جو تعداد ہے نکالنے میں آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. دیکھیں جی، کسی کے سوچنے سے کسی کی ماننے سے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر حقیقت کا سامنا کیا جائے تو پورا ملک اس وقت جس آگ میں اور مہنگائی کی آگ میں جل رہا ہے نا، وہ یہ سب امپورٹڈ حکومت کی کارنامہ ہے ان کا. اور انہی کی وجہ سے آج جو ہر چیز آسمان پہ پہنچی ہے، عوام کی پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر لیا ہے، یہ سب انہی کے جو امپورٹڈ 2 وزیر خزانہ آئے ہیں، یہ انہی کی مرہونی منت، انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. جو وزیر خزانہ آئی ایف سے مذاکرات کر رہا تھا تو آپ کو جو سابق وزیر خزانہ کا بیڑا غرق کر لیا ہے، جو تجربے کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر لیا ہے. اس ملک میں بدقسمتی سے ہمیں پہلے بتایا گیا تھا، میں بھی ایک عوام ہوں، عوام کو بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ چور ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر لیا ہے. آپ جو ہے نا آپ اپنے ملک کو ترقی دیکھیں گے، اور ہمارا ملک ترقی بھی کر رہا تھا. 0.56 کے گروتھ کے حساب سے ہماری جو ہے نا گروتھ اوپر جا رہی تھی. اس کیا وجہ ہے جو آج ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے اور ہماری گروتھ نیچے آئی ہے، دنیا میں مقامی ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ شوکت طرین صاحب نے جو خط لکھنے کا کہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ مدد نہ کرے، تو سر یہ آپ کے جو سابق وزیر خزانہ ہے شوکت طرین صاحب کس کو خط لکھوا رہے تھے آئی ایم ایف کے لیے کہ مدد نہ کی جائے موجودہ حکومت کی؟ دیکھیں جی، شوکت طرین صاحب کی دور کی اگر بات کریں گے
तो तहरीक इंसाफ का दौर ही था जो आवाम को रिलीफ भी मिल रहा था, और वही IMF थी जो कहती थी कि चीजें महंगी कर लो, जो अभी IMF के गुलाम बनी हुई है ये मौजूदा जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। लेकिन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उनकी एक ना सुनी। तहरीक इंसाफ ने बिजली भी सस्ती की थी, तहरीक इंसाफ ने उनके ना चाहने के बावजूद हमने पेट्रोल भी सस्ता किया था, हमने अवाम को रिलीफ दिया। जो पैसे हुकूमत में पाकिस्तान में जो हमारा एक्सपोर्ट था उसकी शरह देख ले, उठा के देगा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, और अभी आप देख ले कि इन्होंने कितना बड़ा मईशत का खर्च किया है। मुसर्रत साहिबा, क्या इस वक्त जो आप लोग हैं वो गवर्नर राज के मूड में, कुछ गवर्नर राज लग सकता है क्या? देखिए हम गवर्नर राज नहीं लगा सकते, वो वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। हम अलाए हैं, देखिए हम अलाए हैं, और बात दरअसल ये है कि जो बात अगर आइनी और कानूनी हक है, अगर आपके सूबे के अंदर अमन अमान की सूरत हाल ना हो तो ये कानूनी हक भी है, और कानूनी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट उसको लगा भी सकती है। कि आप मुझे बताएं कि KPK से आप क्या कहते हैं जी, KPK से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और जो मतलब धावा बोलना चाहते हैं ना आप अपनी गवर्नमेंट पे, आप इस्लामाबाद पे, और क्या चाह रहे हैं आप, यही कहना चाह रहे हैं। बात दरअसल ये है कि अगर इस किस्म की बात कहेंगे तो सिंध से भी तो इनके गए हैं ना लोग, तो कितने लाख लोग थे या कितने हज़ार लोग थे उनके साथ, ये चीज़ें ना करें। देखिए 20 लाख लोग कह रहे हैं, मैं कहती हूँ ये आए इस्लामाबाद, कानूनी तौर पे आए, पुरअमन तरीके से आए, इनका जमहूरी और आइनी हक है। लेकिन आइनी और जमहूरी हक को देखिए क्या होगा अगर इन्होंने देखें, एहतजाज करने से मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी सिविलाइज गवर्नमेंट उनको मना कर सकती है, कोई भी इदारा उन्हें मना कर सकता है। लेकिन खान साहब अपने इदारों पे जो चढ़ाइयाँ कर रहे हैं, जो हर एक के ऊपर एलिगेशंस लगा देते हैं, अब अगर कह दिया जाए, ये तो उठते हुए कह देते हैं कि जी फलां ने फलां कर दिया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो अब अगर हम कह दें बैठे बिठाए कि खान साहब ने जी 200 कत्ल कर दिए, तो उसकी तस्दीक होती है ना, उसका देखें शिकायत कर, अरे एक मिनट, अच्छा चलें ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। आपने सही कहा कि उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। मेरे भाई वकार, देखें गवर्नमेंट उनकी, अगर मैं कहूँ कि सुबह सिंध के अंदर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो नालायकी किसकी है? हमारी होगी ना। गवर्नमेंट आपकी है, या तो फिर ये है कि खान साहब जिस तरह कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, या फिर वो डाकू जिसको आपने सरबराह बना दिए, या फिर आपको उस डाकू पे एतबार नहीं है। जब आपको उस डाकू पे एतबार नहीं है, आपको अपनी गवर्नमेंट पे एतबार नहीं है, आप अपनी अदलिया को भी जो है ना नामुनासिब रवैया इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी पाक फौज को भी नामुनासिब रवैया उनके लिए भी रखते हैं। पॉलिटिशियन से आपकी जो है ना लड़ाई है, आपकी है किससे जो है ना सुलह, जिसको आप कहेंगे, आप तमाम इदारों को बुरा भला कहते हैं, आप गालम गलोच आप लोग करते हैं। हम किसी इदारे हमारे हैं, कोई इदारे को बुरा भला नहीं कहता। चलें एक मुख्तसर सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि क्या गवर्नर राज मसले का हल है, या जिस तरीके से ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हो रही हैं उससे कोई असरात पड़ सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हम तमाम जो जगह जहाँ जहाँ एहतजाज जारी है वहाँ से अपना एहतजाज ख़त्म करते हैं। वजह गालिबन ये है कि राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जनाब इसके असरात मुरतब होंगे, क्या असरात पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक अहम बात खान साहब की तरफ से कहा गया है कि मैं पिंडी आऊँगा और पिंडी में ही तमाम जो लोग हैं, कारकुनान हैं, वो जमा हों, और उसके बाद फिर गालिबन वो इस्लामाबाद की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। क्या पिंडी जमा होने का कोई ख़ास मकसद या कोई ख़ास पैगाम है? जान लेते हैं शाहिद साहब से। शाहिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब क्यों पिंडी जमा होने पर बज़िद नज़र आ रहे हैं? वकार साहब, पहले तो ये मैं जो मैडम है मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, इसका जवाब दे दूं। देखिए, पाकिस्तानी आवाम भी हमारी है जो हमारे साथ निकल रही है तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तानी इदारे भी हमारे हैं। हम वो लोग नहीं है जो कि इदारों के खिलाफ हम ईंट बजाने वाली बात करते थे। हम वो लोग नहीं है जो इंडियन टीवी चैनल पे बैठ के जो है ना अपने मुअज़्ज़ज़ इदारों के सरबराहान के खिलाफ खुलेआम नाम लेके बात करते थे। हम तो कहते थे कानून की हुक्मरानी हो पाकिस्तान में, आवाम को उसका हक दे। जो इधर पाकिस्तान पे जो गलत लोग मुसल्लत हुए हैं उसमें जो है ना उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए जिन्होंने मुल्क का मईशत का बेड़ा गर्क किया है, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान के जो हकीकी
हकीकी जो लीडरान है, जो नुमाइंदगी होगी, इलेक्शन साफ शफाफ करवाएं। हमारा एक ही मुतालबा है ताकि हकीकी जो आवाम जो जिसे मुंतखब करे वो आए और वही पाकिस्तान के पैसे करे, ना कि ड्राइंग रूम पे या बैरूनी मुल्क के जो लोग हैं उनके कहने पे जो है ना या हमारे मुल्क के पैसे हो। बाकी रह गया आपकी बात जो है ना, इसकी एहतजाज की बात की है, धरने की बात की है। देखिए जी, पहले दिन से हमारा एक ही मौका रहा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन जो है ना हमारे मुल्क का वाहिद हल है। जब तक अगर ये हुकूमत उसका ऐलान नहीं करेगी तब तक एहतजाज भी जारी रहेगा, पाकिस्तानी आवाम भी निकलेगी। चले, इलेक्शन ही आपका एक मुतालबा है। मुशर्रफ साहब इलेक्शन का ही मुतालबा कर रहे हैं खाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे में ऐसी कौन सी कबाहत है आखिर? मैं बड़ा मुख्तसर सा बात आपसे करूँगी, वो ये है कि देखिए, अगर इनकी गवर्नमेंट होती तो ये कहते हैं कि 5 साल पूरे होने चाहिए और जमहूरी अंदाज़ है कि 5 साल पूरे करो। तो अगर दूसरी जमातें मुतालबा कर रही थी जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने उस वक्त अनाउंस क्यों नहीं किया? अब ये अगर, या तो बेहतर ये कि अगर पीडीएम की तमाम जमातें जो है ना गवर्नमेंट में आएंगे तो ये अवाम के इतने खैर ख्वाह थे तो अपोजिशन में इन्हें बैठना चाहिए था। अगर 5 साल से पहले कबल अज वक्त इनकी गवर्नमेंट में इलेक्शन नहीं हो सकते थे, और अब अगर ये गवर्नमेंट आ गई और यहाँ भी वही लोग हैं ना कि जो इनके साथ थे, तो इसके लिए वक्त से पहले इलेक्शन का होना मेरी समझ से बालातर है। बिल्कुल ठीक है, और यकीनन जो ताजिर हजरात हैं वो भी इस पूरी सूरत हाल से परेशान होंगे। वारसी साहब, क्या जो इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है और जो हुकूमत है उसके जो इक़दामात हैं, क्या समझते हैं सर, ताजिर कहाँ पर हैं इस वक्त? क्या कह रहे हैं? ताजिरों को कोई मसाइल का सामना तो नहीं है? सर मैं तो उसी पे बात करना चाह रहा था। अच्छा, वो आपने मुझे मौका दे दिया क्योंकि मुझे लग रहा था अब मुझे मौका इस वक्त नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर देखें, ये सियासी जो इनके आपस में जो रंजिशें हैं उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का। उसकी वजह ये है कि आवाम, सर वही मैं आवाम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आवाम का डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना ताजिरों से, क्योंकि ताजिर का जब बिज़नेस चलेगा तो वहाँ रोज़गार भी फराम होगा। सर हमने बिल्कुल मुतालबा किया कि हमारे रोज़गार को खोला जाए, उसके लिए शरह सूद को कम किया जाए, हमारे जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए, हमारे ऊपर जो डीम टैक्स जो लगा दिया गया उसको कम किया जाए। मगर मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातों का जिस वक्त ये किसी एक तरफ जाके बैठ जाएंगे उस वक्त ही होगा। मगर उससे पहले मईशत का बहुत बुरा हाल है। मईशत को चलाने के लिए इनको चाहिए कि चलें, आप लोगों की जो अपनी रंजिशें चल रही हैं वो अपनी जगह वो एक डोमेन में आप चलाते रहें, मगर कम से कम जो अपनी जो ताजिर बरादरी है उनको कारोबार करने का मौके दें। ये जो अभी पंजाब और केपी में जो धरने और ये सब कुछ होगा तो किस तरह से चला जा सकता है? राज के हवाले से भी बात हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट आएगा? सर अभी आ रहा है, देखें ना, अभी मैं बताऊं, आप तो खैर इसी मुल्क में रहते हैं, आपको नहीं पता कितनी बेरोजगारी हो गई है। पहले किसी घर के अंदर 4 लोग नौकरी करते थे, अब 2 लोग नौकरी कर रहे हैं। अब फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, अब कारोबार बंद हो गए हैं। अब कारोबार की कोई बेसिक वजह समझो कि भाई सियासत आप लोग करते रहो जो आपको करनी है, कम से कम जिनके कारोबार चल रहे हैं उनको ख़त्म नहीं करो, उनको रास्ता दो, उनको कारोबार करने का। ये मेरा एक सवाल है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आपके चैनल के तवस्सुल से अपील करता हूँ कि कम से कम जो कारोबारी शख्सियात हैं उनको कारोबार चलाने दें। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से एक अपील करता हूँ, ये हमारी बहन बैठी हुई है, इनसे भी अपील करता हूँ कि कम से कम शरह सूद जो है ना वो उसको ज़रूर कम करें कि हमारा कारोबार चले। जब तक शरह सूद जो है ना, वो तो मैं समझता हूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी जो है ना शरह सूद 1% 2% होता है। हमारा गरीब मुल्क है, हमारे यहाँ 15% 16% है। आप बताएं कैसे हम लोग तरक्की करेंगे? ठीक है, सियासत अपनी जगह करें, वो एक काम है। अब जो कारोबारी लोग जिन्होंने पैसा लगा के इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर खड़े किए हुए, उनका क्या कसूर है? वो उनको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? बिल्कुल ठीक है। और शाहिद साहब, इस वक्त 2 सूबों में आपकी हुकूमत है और 2 सूबों में हुकूमत की वजह से जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बड़े सूबा भी आपके पास है, ताजिरों को मसाइल हैं। सर क्या कोई हल भी निकाला है आपने इसका? ताजिरों से आपने याद दिला दी। देखिए, यहाँ एक कार्गो ट्रेन 501 502 लाहौर कराची के दरमियान फ्रेट ट्रेन चल रही थी, इन्होंने वो भी बंद करवा दी। 1.25 अरब रुपए सालाना उससे आमदन होती थी ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत को। लेकिन बदकिस्मती से जब से नातजुर्बाकार टीम बैठी हो तो उसकी वजह से ये हाल हो गया कि उसको भी बंद करवा दी और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर तजर्बे किए जाते हैं। जब आवाम का हकीकी नुमाइंदा जिसे आवाम मुंतखब खुद करे, शफाफ शफाफ इलेक्शन के बाद जो खुद आए वो फैसले करे, तो वो क्या होंगे। और जो लोग मुसल्लत शुदा है, जो किसी के लाए हुए लोग हैं,
وہ फैसले करेंगे तो अवाम का मीशत का भी यही हाल होगा। अवाम पाकिस्तान की जो है ना, जो अवाम जो आज महंगाई का तूफान आया है तो फिर भी यही हाल होगा, और जो आज अवाम पाकिस्तान में जो दुनिया पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है फिर भी यही हाल होगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखिए ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, और ये इसलिए बना था क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था। आजाद मुल्क, आजाद। अभी भी हमारा मुल्क, क्या आप समझते हैं कि आजाद है? नहीं। मैं आजादी वो चाहता हूँ जिधर इंसान पाकिस्तानी जो हर शहरी को जो उसका हक होता है वो उसको मिले। यहाँ बदकिस्मती से उसका हक गाया जाता है, उसका हक दबाया जाता है, तो हम आजाद नहीं हुए। हम आजाद तब होंगे हकीकी मानों में जब पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी होगी। मुसरत साहिबा क्या कहेंगी? ऑडियो वीडियो लीक हो रही हैं, बहुत ही अहम मामला है, और यकीनन किसी के घर के अंदर इस तरह से जो दखल अंदाजी है और इसको एक्सपोज करना, गालिबन सियासत नज़र नहीं आती। कौन है इसके पीछे आखिर? देखिए जो भी ये वीडियोज़ या ऑडियोज़ जो लीक हो रही है, मैं समझती हूँ उन पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, और स्पेशली ज़ातियात पर जो जाने वाला है, इस पे मेरे चेयरमैन ने भी और मेरी पूरी पार्टी ने जो है ना, ये हमेशा ही कहेगी कि इस पर मैं समझती हूँ कि ये एक डर्टी पॉलिटिक्स है, और डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना नहीं होनी चाहिए, और ये डर्टी पॉलिटिक्स में भी जो इन्वॉल्व है वो पीटीआई कुछ ज़्यादा ही है, और कुछ ज़्यादा ही है। और मैं समझती हूँ, देखिए सियासी लोग जो है ना, सही मायनों में जो सियासी हैं, अनाड़ी हैं या कुछ इस टाइप के लोग आए, उनको नहीं कहा जा सकता। सियासत के अंदर मैं नहीं समझती हूँ इस किस्म की कोई बात हो सकती है, या अच्छा सियासतदान इस किस्म का सोच सकता है। मेरी तरबियत जिस पार्टी से है वहाँ हमारे यहाँ इस चीज़ का सोचना भी गुनाह है। वारसी साहब क्या कहेंगे? ऑडियो भी लीक हो रही है, वीडियो लीक हो रही है, जिस तरीके की ऑडियो वीडियो लीक हो रही है, क्या ये सियासत के अंदर आप समझते हैं कि मुनासिब अमल है? मैं तो ये कहता हूँ कि हमें ये सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। मैं क्योंकि एक सियासी वर्कर नहीं हूँ, मैं एक ताजिर हूँ, तो मैं अपने उस हिसाब से बात करता हूँ। मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, तो मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों पे तो हमें बात करने की इजाज़त भी नहीं, नाम करेंगे हम तो अपनी मईशत की बात करेंगे। मगर इस चीज़ में जो भी ये काम हो रहा है ना, अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ आए। और मेरा ख्याल है किसी का भी नज़रिया ये नहीं है कि मुल्क जो है ना किसी तबाही की तरफ जाए, ख़राबी की तरफ जाए। सब बेहतरी की चाहते हैं, सबका अंदाज़ अलग है बात करने का। मेरा अंदाज़ ये है कि सर मैं अपनी तरक्की चाहता हूँ, अपने कारोबार की तरक्की चाहता हूँ, मेरे पाकिस्तान की खुशहाली चाहता हूँ, पाकिस्तान में जितने लोग अभी बेरोज़गार हैं उनकी मैं रोज़गार चाहता हूँ। और जो नाइंसाफ़ी पाकिस्तानी जो हमारे अवाम के साथ हो रही है, अवाम इस चीज़ का निशाना ना बने। अवाम को रिलीफ देने के लिए बताइए कि ये सारी जमातें जो लड़ रही हैं, ये सिर्फ मेरी अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रही हैं, तो वो फ़ायदा कब पहुँचेगा और कैसे पहुँचेगा वो मुझे बताइए। ठीक है जनाब, बस शाहिद साहब फाइनल कमेंट कीजिएगा। ऑडियो और वीडियो लीक हो रही है, आपके लोगों के ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है, फाइनल कमेंट कीजिएगा सर। देखिए जी वकार साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि वीडियो और ऑडियो ये इंतहाई घटिया हरकत है। ये जो भी कुव्वतें इसके पीछे हैं, जो भी कहते हैं कि मेरे पास बड़े बड़े लोगों के वीडियोस मौजूद है, और अल्लाह ताला जो है ना उनको इबरतनाक बना दे जो किसी की घर का जो है ना इज्जत तार तार करने का सोचता हो, किसी की भी हो, कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो, कोई भी नॉन पॉलिटिकल आदमी हो, कोई भी, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। चाहे परवेज रशीद साहब की वीडियो हो, चाहे स्वाति साहब की वीडियो हो, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। एक सियासतदान हो के एक मुस्बित सोच लगा के ये जो काम है ये जेब नहीं देता। भाई अगर आपने मुकाबला करने मैदान में आए ना, आवाम में जाए, आवाम से वोट ले के ये जो हरकतें अजीब सी, हम क्यों साफ सफाफ इलेक्शन चाहते हैं? क्योंकि ये अजीब सी हरकतें करते हैं इलेक्शन में इक्तिदार के लिए, इक्तिदार में मुसल्लत होने के लिए। तो ये कभी गुड पॉलिश करते हैं, कभी 2 नंबर तरीके से बाहर मुल्क की जो एजेंटों के जरिए आते हैं, कभी ये वीडियोस, कभी क्या, ये डर्टी पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन सी सियासी जमात है, कौन इस वक्त इसके पीछे? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। बिल्कुल ठीक है जनाब, तमाम ऐसे इक़दामात और मामलात होने चाहिए जहाँ पर इस वक्त ताजिर ख़ास तौर पे जो है परेशानी का सामना जिन्हें करना पड़ा ना, उनको परेशानी ना हो, और साथ ही साथ जो आवाम है उसके मसाइल भी हल हों, क्योंकि आवाम के लिए मसाइल जो हैं वो दीगर हैं। कई ऐसे मामलात हैं जहाँ पर आवाम चाहती है कि उनके जो मसाइल हैं वो हल हों। इसके साथ ही वक़ारुल हसन को 2 टोक से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।